Hello bachcho, today we are going to study about most important topic mole. Mole, it was first introduced by Wilhelm Ostwald and he termed this mole, and in Latin the meaning of mole is heap. So Wilhelm Ostwald termed mole. And now what is a mole? A mole is defined as the amount of substance which contains particles like atoms, ions, molecules, etc. in terms of mass, which is equal to the 12 gram of carbon atom. And 1 mole of any substance is equal to, or you can say it is defined as the quantity in number which is in mass equal to the atomic mass or molecular mass of the substance. Means if we are going to calculate 1 mole of carbon atom, so here is 1 mole of carbon atom is equal to 12 gram, and 1 mole of oxygen molecule is equal to how many gram? We know 1 atom of oxygen is equal to 16 gram. So what about this molecule? It has 2 atoms. तो यहाँ पे we will multiply this with 16 gram and we will get 32 gram. So here is 1 mole. 1 mole of molecule is equal to 32 gram, whereas 1 mole of atom, carbon atom, is equal to 12 gram. Similarly, if it is here ozone molecule, then what we will do to calculate 1 mole of oxygen molecule, if it is this, then what about the ozone? We will, here is 3 atom, so 1 atom mass is equal to 3 gram, so it is equal to this. So what will come? 3 atom multiplied by this, so here is 78 gram, sorry, not about the 78 gram, 48 gram will come. So this is about the mole. Now this is about 1 mole of oxygen molecule or ozone molecule. What about the water molecule? So 1 mole of water molecule is equal to, water molecule, at it has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So after calculating it, 2 into H plus O, so here is 2 gram of hydrogen plus 16 gram of water, it is equal to 16 gram of, so 1 mole of water molecule is equal to 18 gram. 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम के इक्वल होता है, यानी 18 ग्राम 1 मोल. नाउ 1 मोल कितने पार्टिकल्स के इक्वल होता है? 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वल होता है. 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का जो है कितने पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस में कितने होते हैं पार्टिकल्स? सो 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं. इतने ही एटम्स होंगे, इतने ही आयंस होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो भी पार्टिकल्स होगा वो इतना ही होगा. इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं. सो एवोगैड्रो number, Avogadro number is what? It is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 and इसको Avogadro constant भी कहते हैं. So 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 particles, and this is Avogadro number, which is represented by Na. So here is now molar mass. Molar mass is what?
molar mass is the amount of substance present in 1 mole. So molar mass of substance is equal to its relative atomic mass or molecular mass. So molar mass is equal to what? Molar mass of any substance is equal to its atomic mass or molecular mass. So here is term is used relative atomic mass. Relative atomic mass इसलिए कहा गया है कि कुछ जो है आइसोटॉप्स होते हैं तो वहाँ पे वो रिलेटिव होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए। और मॉलिक्यूलर मास, तो एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो हम एटॉमिक मास लें या फिर मॉलिक्यूलर मास लें, जो मोलर मास होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल 18U जो है रिप्रेजेंट करता है mass of one molecule, mass of one molecule of what? water। एक मॉलिक्यूल का मास 18U है और U की जगह अगर हम ग्राम कर देते हैं तो ये बन जाता है मोलर मास। तो 18 ग्राम क्या है? मोलर मास ऑफ वाटर, molar mass of water molecule। Now here is one more example लेंगे। कार्बन का अगर हम देखते हैं 12U जो है ये एटॉमिक मास है। This is atomic mass of one carbon atom। 12 ग्राम जो है इसको हम मानेंगे, बस हमने U की जगह ग्राम ले लिया है, तो ये होगा मोलर मास ऑफ वन कार्बन एटम। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में। यहाँ पे अगर एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है, सिर्फ ग्राम लगा देने से वो मोलर मास कहलाता है। और एक चीज़ और बताई जाए कि 1 मोल ऑफ वाटर कितने के इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ वाटर जो है 18 ग्राम के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे 36 ग्राम लिखते हैं तो 36 ग्राम ऑलमोस्ट 18 ग्राम का डबल है। इसमें क्या है? 2 मोल ऑफ वाटर है। तो ये बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि मोल एक्जैक्टली क्या है। तो 1 मोल कितने के इक्वल है ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास, या फिर कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो उससे जो है हमें 1 मोल ऑफ जो है वाटर या दूसरे एलिमेंट्स के कितने जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन का लिया है, अगर 1 मोल 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल है तो 2 मोल जो है 28 ग्राम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हर एलिमेंट का डिफरेंट ग्राम के इक्वल है, तो उस हिसाब से मोल उसके अकॉर्डिंगली बनता है। लेकिन ये किसी के भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के जो है इक्वल हो जाता है। एंड पार्टिकल्स को हम देखेंगे तो पार्टिकल्स, एक मोल में पार्टिकल कांस्टेंट है सभी के लिए, 6.022 इंटू 10⁻23 है। सो पार्टिकल सब में हमें इतने ही मिलेंगे, चाहे एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो। नाउ मोल इज इक्वल टू, हियर इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास upon molecular mass. This is the formula to calculate it, this molar mass. So here is number of moles जो है given mass upon molar mass के इक्वल है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर हमें यहाँ पे 36 ग्राम गिवन मास दिया है वाटर का, और मोलर मास हमें पता है वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। सो उसमें कितने मोल्स होंगे?
तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए 18 को हम इससे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2 मोल्स। सो 36 ग्राम में 2 मोल्स होते हैं ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें क्या अमाउंट दिया गया है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं। वाटर का मोलर मास मैंने आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ग्राम में कैलकुलेट करेंगे। और इसका 18 ग्राम होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ 2 है 16 है, प्लस करके हमने 18 ग्राम हमें जो है पता है। सिमिलरली और भी मॉलिक्यूल्स के निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास कार्बन का कितना है, कार्बन एक एटम है 12 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का 2 है, 2 × 16 ग्राम। 1 ग्राम में 1 जो आपका एटम है 16 ग्राम का होता है। 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, यानी हमारे पास आ गया है 44 ग्राम का 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है। तो अगर यहाँ पे गिवन अमाउंट दिया गया है कि यहाँ पे हमें दे दिया गया है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें कितने मोल्स होंगे हमें पता है। मोलर मास इसका 44 ग्राम है, तो 88 ग्राम गिवन है। इसका मोल निकालने के लिए मोलर मास से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये 2 मोल्स ही मिलेगा। सिमिलरली और भी दिया होगा तो वैल्यू अगर यहाँ पे 100 दी होगी तो हमें पॉइंट में मिल जाएगा। तो इसी तरह हमारे मोल्स जो है चेंज हो जाएंगे, हमें बस मोलर मास से वो गिवन मास को डिवाइड करना होगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट करोगे। नाउ अनदर थिंग, अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम और भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गिवन मास नहीं दिया है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं। सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर मेंशन है किस टर्म में, एटम्स के टर्म में, आयंस के टर्म में, या फिर मॉलिक्यूल्स के टर्म में, किसी में भी दिया होगा, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, जो फिक्स नंबर होता है। 1 मोल में उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 6.022 × 10⁻23। तो जो भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ दिए होंगे उसको इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएगा। तो फॉर्मूला में हमें एवोगैड्रो नंबर और या फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें याद रखनी है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जो कि होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल। तो गिवन मास और मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर पार्टिकल्स दिए होंगे तो पार्टिकल्स से भी मोल्स निकल जाते हैं। पार्टिकल्स दिए हैं तो एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नाउ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में और भी, जो कि न्यूमेरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम देखेंगे। लाइक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, आप वैसे किसी का भी लोगे, यहाँ पे कार्बन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इक्वल होते हैं पार्टिकल्स नंबर में, ये 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। और पार्टिकल्स कह लो, पार्टिकल्स में अगर हमने एटम लिया है तो हम यहाँ पे पार्टिकल्स में एटम से ले सकते हैं। एंड यहाँ पे कितना इसका जो है मॉलिक्यूलर मास है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को देख लें, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसी तरह ये ऊपर भी किसी के भी एटम के बारे में है। हाइड्रोजन का एटम भी इतने ही नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा तो 1 ग्राम होगा। तो यहाँ पे एटम्स के जो है एटॉमिक मास कितने ग्राम के हैं और कितना पार्टिकल्स है, तो ये नंबर फिक्स होते हैं। हाइड्रोजन में ये 1 ग्राम हो जाएगा, नाइट्रोजन में ये 14 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह वेरी करेगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो है किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल्स के इक्वल होगा, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। डिपेंड करता है कि हम किसको ले रहे हैं। एटम लेंगे तो एटम को इस नंबर के साथ लिखेंगे, मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का यहाँ पे मोलर मास होगा। तो कितना मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसी का भी अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो 18 ग्राम ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का है तो 44 ग्राम ले लेंगे, नाइट्रोजन का है तो 14 ग्राम ले लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। सिमिलरली अगर नेक्स्ट हम किसी 1 मोल ऑफ, अगर पार्टिकल्स को ले लेते हैं, हमारे पार्टिकल्स जो है कोई भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, तो वो कैसे होगा? तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स में हम यहाँ पे पार्टिकल्स यूज़ करेंगे। तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स जो है कैसे इक्वल होगा वो हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ पार्टिकल जो है ये कोई कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आयंस में भी दिया होगा, अगर आपको आयंस भी दिए होंगे तो आयंस को भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होगा, जो हमारा आयंस भी हो सकता है, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे रिलेटिव मास होगा, क्योंकि इनके मास जो है कांस्टेंट नहीं होते, रिलेटिव होते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम ले सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हो सकता है, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हो सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर आयंस और एटम्स, एटम्स और आयंस या पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पार्टिकल्स में आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये सब भी आ सकते हैं। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हमने स्टडी किया कि कार्बन एटम में 12 ग्राम का होता है और इसके पार्टिकल्स इतने ही होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा 1 मोल। अगर वाटर है तो 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है। मॉलिक्यूल नंबर में 6.022 होगा। पार्टिकल्स हम आयंस या एटम्स देखते हैं तो आयंस कितने इक्वल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस पार्टिकल्स में ही आते हैं, एटम्स के बराबर होंगे। और यहाँ पे यही 1 मोल रिलेटिव उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। सो दिस इज़ अबाउट द मोल। एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी, हम न्यूमेरिकल्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम हम निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन एटम। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, इसका एटॉमिक मास जो होता है 14 ग्राम होता है। तो 1 मोल एटम का तो जो है नाइट्रोजन एटम का 14 ग्राम के इक्वल होगा। तो इट इज़ इक्वल टू 14 ग्राम। अगर 14 ग्राम में 1 मोल है तो अगर हम इसका डबल करेंगे 28 ग्राम करेंगे तो कितने मोल होगा। ऑब्वियसली 14 ग्राम का 1 है तो डबल करने से 2 मोल होगा, और 3 टाइम्स करेंगे तो 3 मोल होगा। तो इस तरह हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितना जो है मोल होगा। अब हमें 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितना मोल निकालेंगे। यहाँ पे जो है गिवन मास दिया है, यहाँ पे कुछ हिंट नहीं दिया है, तो इसका मोल निकालेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं किसके बराबर है, गिवन मास अपॉन मोलर मास के बराबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का गैस है यानी मॉलिक्यूल है, गिवन मास हमें 48 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है गैस है तो मॉलिक्यूल है, O2 होगा, एक 16 ग्राम के 2 जो है, तो 2 इंटू 16 ग्राम हमारे पास 32 ग्राम का मॉलिक्यूल है। तो मोलर मास हमारा 32 ग्राम है। 32 ग्राम से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें डिवाइड करने से 1.5 मोल। तो हमारा आंसर है 1.5 मोल। तो इस तरह हम सारे मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ये बहुत ईजी है, टफ नहीं है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन।